Come, Megha ji, आइए. Megha Singh Kanwar. Okay. Which place you are from? Sir, I am from district Sirmaur. Sirmaur. Tell me what is the meaning of the word Sirmaur? Sir, literally means Sir ka Taj. Good, very good. Tell us something about your educational background and your family members. Yes. Sir, I did my schooling from JNV Nahan. After that, I did my graduation and post-graduation from Dr. Y.S. Parmar University of Horticulture and Forestry, Noni. And my family members, I have mother, father, and my elder brother. Okay. What's your father doing? What's your father doing? He's a farmer. Okay. How much land do you have? Sir, I don't know. What do you cultivate? Sir, we cultivate seasonal vegetables as well as we have apple orchards. Okay. What type of seasonal vegetables? Give me examples. Like garlic, tomato, pea, Okay. cabbage. ठीक है. So your mother is working as an Anganwadi worker. What are the major duties of an Anganwadi? Sir, major duties of my mother is to educate and aware the lactating mother, pregnant women, and sir to care about the infant childrens. And sir, do vaccination drives like sir during polio vaccination program. She had to go to from door to door to vaccinate the children. Okay. So what is your mother doing? He is in HP Police. Okay. You have done your BSc Honors Forestry in 2020, and then you have done Masters also. Okay. Agroforestry, was it a subject or you have mentioned forestry, agroforestry? So it was it was one of the subjects you have studied. Okay, tell us something about that. Sir, agroforestry is the branch of forestry in which we integrate the agriculture crops as well as the forest trees on farmland to meet the various need for sir agriculture purpose and to provide fodder for animals and sir to uh, develop sir ecological benefits for environmental conservation. What is joint forest management? Sir, joint forest management is a program in which we integrate the local community in the management of forest. Okay. Different types of cultivation is done. One is aquaponics, Tell us something about that. Sir, aquaponics, Yeah. it is about, sir, like fisheries, like cultivating and breeding of marine and life, like fish, various kind of fishes. What is the difference between medicinal plants and aromatic plants? Sir, medicinal plant are the plants which have some specific medicinal value. But sir, aromatic plants are those that are used to provide aroma. For example, sir, like shingli mingli is a medicinal plant, but sir, cardamom and clove is aromatic. Okay, what is herbarium? Sir, herbarium is a document in which it is a collection of various plants in which we dry the plant parts. It may be leaf, it may be fruit, or we dry and keep them in a preserved form for further studies. Okay, what is in situ and ex situ? Sir, in situ, these are two forms of conservation. In this in situ conservation, we do the conservation of a particular species in his own native habitat. But sir, in ex situ conservation, we provide a captive environment for that particular species. Okay. What is the importance of science and technology in nation building? Sir, science and technology can play a significant role. It can have diverse application. For example, sir, in space also, in biotechnology, and sir, for infrastructure purpose in engineering background. What you have been doing after passing your this master's? Sir, after passing my master's, I started preparing for civil services. If you are selected, how will you handle political pressure?
Political pressure. Sir, can I answer that in Hindi? Oh, definitely. Sir, to handle the political pressure, first I need to clear my mind. Sorry sir, मुझे अपना विल पावर स्ट्रांग रखनी पड़ेगी सर। जो मेरी बेसिक वैल्यूज है उनको मेरे को अपहोल्ड करना पड़ेगा और अपने को मतलब एक प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ेगा। मतलब उनकी बात भी अब माननी पड़ेगी और सर उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे काम करना है, जो जो ड्यूटीज मिली है वो भी करना अगर पड़ेगा। पॉलिटिकल प्रेशर आपको गलत काम करने के लिए, अनफेयर मीन्स यूज करने के लिए कहता है तो क्या करोगे? विल यू कम टू द प्रेशर और आई विल सर, मैं उनसे बात करूंगी कि अगर ये गलत साइड जा रहा है तो मैं इस काम को करने के लिए रेडी नहीं हूँ। he is not ready to listen to you because he belongs to the political party? He is your boss. Then, in that situation, what will you do? सर मैं उनको इन्फॉर्म करूंगी कि मैं जो मेरी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं ये काम नहीं कर सकती उसके ऊपर। फिर वो कहेगा कि छुट्टी लेकर जॉब छोड़ के घर चले जाओगे, आप मान लोगे? हैं? कर दोगे? सर मैं कहूंगी कि अगर आपने मेरे को कहीं और ट्रांसफर करना है, किसी रिमोट विलेज में ऐसे डालना है तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं ये काम नहीं कर सकती। ये अगर इतना सिंपल होता तो फिर गुड गवर्नेंस तो इश्यू कोई नहीं था, फिर तो सब कुछ बढ़िया चलता। चलिए, व्हाट इज द रोल ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? एनजीटी का क्या रोल है? सर जो एनजीटी है वो बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखता है कि उनका एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। कि अगर उनकी कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस है तो वो उसको ऑब्जेक्ट करता है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए मना करता है। How many members appear in NGT? Sir, I don't know the exact number, but I can make a guess. There is a one chairman and I think 10%. 10 members. Anyway, NGT के पास कोई जुडिशियल पास होती है कि अगर कोई एक्शन लिया गया और वो एक्शन उसने नहीं किया, फाइन किया, फाइन जमा नहीं करवाया, तो क्या कोई जुडिशियल पावर होती है उस बंदे के ऊपर कोई अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके? सर ये एक ट्रिब्यूनल है तो आई थिंक है जुडिशियल बात है। Yes, ओके, sir. चलिए, माय लास्ट क्वेश्चन इज कि यू आर वर्किंग एज एन एसडीएम और आपकी एरिया में दो कम्युनिटीज के बीच में राइट्स हो जाते हैं, दंगे हो गए, पीपल हैव स्टार्टेड बर्निंग द प्रॉपर्टी, ठीक है? उस समय आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? आपको पता चला कि ये बात हो गई है, सबसे पहले क्या करोगे? सर दंगे हो गए हैं, सबसे पहले तो मैं सर उन राइट्स को रोकने के लिए सबसे पहले एफर्ट मेरे उसको स्टॉप करने के लिए होगा। क्या क्या एफर्ट होगा, कैसे करोगे? सर मैं उनके बीच कम्युनिकेट करना चाहूंगी कि इशू क्या है, कि किस बेसिस पे वो आपस में लड़ रहे हैं। The houses are on fire, the motor vehicles are on fire. उस समय आप अकेले जाके सर किस मैं तरह बात पर्सनल को अपने साथ पर्सनल को लेके कौन से पर्सन को लेके जाओगे? डेली वेजेस को ले जाओगे, चलो मेरे साथ वहां चल के आगे। डिपार्टमेंट आर्म फोर्सेस को लेके। पहले किसको इन्फॉर्म करोगे आप? सर पुलिस डिपार्टमेंट। आपने डीसी को नहीं बताओगे कि ये हो गया मेरे, तो पहले डीसी से स्टार्ट करोगे ना? I will inform them and request the requirement of a personnel to contain this situation. पुलिस कितनी चाहिए? Yes sir, ये सारी डिटेल्स प्रिपेयर करनी तो पड़ेगी। पहले से नीचे का आना या नीचे से पहले जाना? सबसे पहले आप गाड़ी निकालोगे, दो चार बंदे बिठाओगे, चल आके उनके साथ बात करके आते हैं, ये दंगे हो रहे हैं, है ना? क्या हो जाएगा? आई मीन बीइंग लेडी तो आपको, है ना? तो ये सारा एनीवे सर। मेघा, ये सिचुएशन जो बता रहे थे अनिल जी, जिसकी बात हो रही थी, इसमें अगर आपको वो नौबत आ जाए कि आपको फायर करना पड़े, फायर करने का ऑर्डर देना पड़े एसडीएम, तो क्या प्रोसीजर होता है? कैसे, कहाँ से परमिशन ली जाती है और क्या सिस्टम है? फायर सर टीयर गैस यूज करना कि डायरेक्ट टीयर गैस या गोली चलाने की नौबत आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? टीयर गैस तो वो तो वाटर कैनन तो यूज कर सकते हो, वो तो उसको तो कोई आपको पूछेगा भी नहीं, पर गोली अगर चलानी पड़ गई तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है एसडीएम के पास? हुक्म देने के पहले वो क्या करना होता है? आई नीड टू रीड अबाउट दैट सर, आई डोंट। ऑलराइट,
मुझे ये बताओ कि 2019 में आपने एनसीसी सी सर्टिफिकेट पास कर दिया। उसके बाद आप इधर उधर ये करते थे, आपने सीडीएस में क्यों नहीं गए? सर सीडीएस के लिए मैं एज अ इंटरव्यू करियर में एसएसबी में जाना था, आप यू कुड गो डायरेक्टली टू एसएसबी, व्हाई डिडंट यू गो देयर? सर बिकॉज सर आई डोंट वांट टू परस्यू दैट एज अ करियर। तो फिर एनसीसी क्यों रखी? सी सर्टिफिकेट करने की क्या जरूरत थी? एनसीसी मैंने एज अपने करियर अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट टू इम्बाइब द वैल्यूज लाइक डिसिप्लिन। तो आर्मी फोर्सेस में, आर्मी में जाके और करेक्टर डेवलप हो जाता। यस सर, पर बेसिकली सर मेरे को पर्सनली अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी थी, फिर साथ में मेरे को अपना ऐसे एज अ ग्रेजुएशन बाकी फर्दर स्टडीज को। अच्छा, आप एथलीट रही हैं और 2020 के बाद आपने सब कुछ बंद कर दिया एथलेटिक्स वगैरह, क्यों? सर फिर मैंने मास्टर्स के टाइम सर फिर मैं रिसर्च पे फोकस कर रही थी उस टाइम। नहीं, पर एथलेटिक्स इज नॉट ए फुल टाइम जॉब कि आपको। बट सर मैं ऐसे पर्सनली अपने लेवल पे रनिंग तो मैं ऐसे ऐसे करती अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को कंटिन्यू अच्छा, स्पोर्ट्स जो है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ लेसन्स दे टीच यू? क्या क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर अच्छी लाइफ लेसन जो है वो सीखता है, और उनका क्यों एक उसकी वेल राउंडेड पर्सनैलिटी बढ़िया बन जाती है एक स्पोर्ट्स पर्सन की, क्या कारण है? सर क्योंकि सर जो स्पोर्ट्स के थ्रू हमें कई चीजें सीखने को मिलती है सर। एक तो सबसे पहले अपना एक डिसिप्लिन कि आपको करना है ये चीज, एक डेडिकेशन प्रॉपर, और एक सर टीम वर्क हमें सीखने को मिलता है। और हमें सर ये मिलता है कि हम किसी भी गेम में हम विनिंग चांस भी होता है और आप कई बार लूज भी कर जाते हैं, तो आपको उससे एक्सेप्ट करना चाहिए सिचुएशन को कि आपको कभी लाइफ में विनिंग भी हो सकती है और कभी आप लूज भी कर सकते हैं। तो एक सर एक स्पोर्ट्समैनशिप की एक जो वैल्यू होती है वो डेवलप होती है सर। निश्चय कर अपनी जीत करो, ये नहीं आता कि वी आर गोइंग टू विन, मुझे ये जीतना ही। सर एक मेन, जब तो आप गेम में फोकस करते हैं तो सर स्टार्टिंग में तो एम तो यही होता है कि आपको जीतना है, पर इन केस आप हार गए तो हम आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि आज हमारा दिन ही था, तो जो अगली टीम जीती है वो भी उसी मोटिव के साथ आए थे, तो आज वो वो जीती है। पीछे छोड़ के आगे जो है ना, फॉल 99 टाइम्स एंड राइज 100 टाइम्स, बाउंसिंग बैक, है ना, उस सिचुएशन को समझ के। अच्छा, ये बताएं, आप फिक्शन रीडिंग में तो कौन सी किताब पढ़ी है या पढ़ रहे हो आजकल, क्या है? Sir, recently I have read one book that is named Things to Leave Behind by Namita Gokhale. हाँ, अच्छा, वो पढ़ी है आपने किताब? वो तो बहुत खूबसूरत किताब है। ये फिक्शन है या नॉन फिक्शन है ये? सर फिक्शन नॉवल है। फिक्शन नॉवल हाँ, है। पर जो सर ऑथर है ये नामिता गोखले, इनकी पर्सनल इन्होंने जो इसमें स्टोरी बनाई है वो हिमाचल उत्तराखंड। एक्चुअल लाइफ के ऊपर है कुछ? सर एक्चुअल लाइफ नहीं है, पर जो जगह है, जो प्लेस है और जो हमारी हिस्ट्री रही है वो उसके अराउंड ही रिवॉल्व करती है, पर जो स्टोरी है वो फिक्शन है। बड़ा वेल नोन नॉवल है। अच्छा, आप लाइफ में हाउ डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर फ्यू ईयर्स, के आप क्या देखते हैं अपने आप को, क्या आप अचीव कर पाई होंगी और क्या आप चाहेंगी कि आप बन जाए, और 5-7 साल के अंदर आप क्या होंगी? सर इन सालों के अंदर सबसे पहले तो सर जो मैं अपने करियर में चीज़ें अचीव करना चाहती हूँ वो अपने गोल्स में पूरे कर पाऊँ वो चीज़। और सर फैमिली वाइज भी मैं एक स्टेबल लाइफ चाहती हूँ, जो मेरी फैमिली रिलेशंस हैं। और सर तीसरा जो मेरे अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं जो अभी हैं मेरे, अभी तो मैं उनको सोचती हूँ कि मैं उनको परस्यू करूँगी, पर आफ्टर 5-6 इयर्स इफ मतलब मेरे कोई नए पर्सनल इंटरेस्ट डेवलप करते तो मैं उनको अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, मैं ऐसे दिखती हूँ। What kind of qualities would you like to see in your future prospective husband? क्या prospective husband शादी करेंगी तो what kind of quality would you like to see in him? फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर। वो कैसे पता लगेगा? फिर वो सर कम्युनिकेशन के थ्रू कि फ्यूचर हस्बैंड जो होगा सर पहले उनके साथ देयर शुड बी ए कंटिन्यूस डायलॉग फॉर सम टाइम और कंटिन्यूस रीडिंग। आप एकदम नहीं कि आप शादी कर लेंगे फटाफट, ऐसे नहीं। अच्छा, और किसी भी जॉब के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर क्या होता है जो प्रोफेशनल
एक अच्छा प्रोफेशनल बना देता है. If you want to become a good professional, what is one quality which you will imbibe? Sir, quality to maintain a balance, I think. अच्छा, एक सोनम वांगचुक है एक बंदा, क्या चाहते हैं वो? सर एक तो जो वो मतलब हेल्प करना चाहते हैं हमारी स्टेट आर्म्ड फोर्सेस को, हमारी गवर्नमेंट को, जो विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सर, जो उनकी अपनी नॉलेज है एक, और सेकंड सर जो वो अवेयरनेस और एजुकेट करना चाहते हैं वहाँ के लोकल पीपल को, और थर्ड सर उनकी जो अभी जो रिसेंट जो न्यूज़ में रहे हैं वो जो डिमांड कर रहे थे वहाँ पे 6 शेड्यूल के. 6 या उसका बताओ मुझे, वो शेड्यूल क्या है उसका मतलब? सर 6 शेड्यूल एक शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसके अंडर सर जो ट्राइबल एरिया है उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स मिलते हैं. ईस्ट में है लागू? इट इज प्रेवलेंट इन 3 स्टेट्स इन ईस्ट. तो यहाँ क्यों नहीं लागू हो सकता? सर इन लद्दाख एरिया सर आई थिंक द केस इज मे बी ड्यू टू इट इज अ बॉर्डर यूनियन टेरिटरी. तो border It है. shared border with sir in Assam, but here we share border with the China and LAC area, and it is quite a volatile region due to security concerns. चलो, Sir, I think that. थैंक यू मेघा. Yes, sir. ओके, सो आप मुझे ये बताइए कि टेल मी एटलीस्ट 3 famous temples in Sirmaur. So first is Shaya Temple. It is in Rajgarh. It is dedicated to Lord Shirgul. Or sir, second is Gayatri Devi Temple. It is in Renuka place. And third is temple. Sir, I cannot recall the name, but is in Ponta Sahib. I think Vyas Rishi Temple. Okay, tell us about Renuka Fair. Sir, Renuka Fair is a fair that is conducted after the 10 days of Diwali. This fair is dedicated to the meeting of the mother Renuka to her son Lord Parshuram. Okay, have you heard about Mahasu Devta? Yesterday he is in your area. So what is tell me something about this Devta. Sir, can I answer it in English? Sir, जो लॉर्ड महासु हैं उनको चल्दा महासु बोलते हैं. तो वो एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करते हैं. वो तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं. तो अभी रिसेंटली सर वो उत्तराखंड एरिया में थे, जो जौनसार बावर वाला एरिया था. वहां से अभी वो करंटली सिरमौर में जो शिलाई एरिया है वहाँ की विलेज है एक, वहां पे आए हैं. तो क्या खास है इसमें कि वो इधर आ गए? कि सर वो ऐसा होता है कि जो उनका एरिया होता है जहाँ वो जाना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपनी मानते हैं कि यहाँ पे जाना है, तो वहां पे आते हैं वो. मतलब तो वहाँ उनका एरिया है जाने का शिलाई में? शिलाई में सर अभी तक कितनी बार आए शिलाई में? शिलाई में आई थिंक सर इट्स सेकंड टाइम आई थिंक. ये इसीलिए फेमस है कि पहली बार आ रहे हैं वहाँ पे, जो रिवर क्रॉस करके वो पहली बारी उस तरफ को आ रहे हैं. ओके, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में क्या है कि ड्रग्स का बड़ा इशू है. रिसेंटली हिमाचल जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक बिल पास किया है, वो है HP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल बिल 2025. तो क्या है इसके अंदर? सर मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका, उसमें जो पनिशमेंट और कन्फाइनमेंट की है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट कर दी. अच्छा, क्या किया स्ट्रिक्ट, कितना स्ट्रिक्ट किया है? सर I don't know much about particular. I'm not that specific about the details, but सर स्ट्रिक्ट कर दी है, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन. और इसमें ये स्ट्रिक्ट किया है कि इसमें डेथ पेनल्टी तक की बात की गई है और 10 लाख तक का पनिशमेंट में थे. अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि अगर इतने स्ट्रिक्ट लॉ बनाने से ये जो क्राइम है ये रुक पाएगा हिमाचल में? कुछ और भी करने की जरूरत है? सर ये एक कारण, ये एक बन सकता है. अगर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है तो एक फेयर बना रहता है. पर सर सोली हम अगर इस पे रिलाई करेंगे तो वो उससे एम फुलफिल नहीं होगा. तो क्या करना पड़ेगा? अदर बेनिफिट, अदर मींस यूज करने पड़ेंगे सर. जैसे एक तो हम सबसे पहले हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं. वो कम्युनिटी लेवल पे भी हो सकते हैं और एजुकेशन स्कूल्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं हम सर. जैसे हो भी रहे हैं, हिमवीर्स और हिम रक्षक बना रहे हैं जो ये जागरूकता कैंपेन्स मतलब स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल में. और सर थर्ड, हम जो वहाँ कम्युनिटीज है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. अच्छा, अभी हिमाचल में कुछ दिशा सेंटर्स बना है, वो क्या है दिशा सेंटर्स?
Sir, I don't know much about that. ओके, आशा वर्कर का काम क्या रहता है? सर आशा वर्कर भी ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ वेलफेयर का काम करते हैं। वो सबसे पहले जैसे आंगनवाड़ी वर्कर का काम है कि लैक्टेटिंग मदर और इनको एजुकेट करना है, वैसे ही वो डोर टू डोर जाके ये फैसिलिटीज़ हर विमेन को प्रोवाइड कराती है। फिर अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग विमेन है, चाहे ये प्रेग्नेंट विमेन है और जिनके न्यूली जिन्होंने बर्थ दिया है अभी बेबीज़ को, उनको न्यूट्रिशन के बारे में अवेयर कराती है, उनको वैक्सीनेशन के लिए अवेयर कराती है और उनको टाइम टू टाइम डिटेल्स देती है कि इनको इस टाइम पे यहाँ पे आना है। ठीक है। जो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है टूरिज्म का, वो कितना है इस टाइम? सर इन हिमाचल इट इज़ 7%। कितना परसेंट हम एक्सपेक्ट करता है? सर 10%। ओके, तो 7 से 10% लेके जाना है, तो क्या करने की ज़रूरत है? Sir, first step will be the diversification of tourism. To explore the tourism potential in Himachal, we can go for different kind of tourism, sir, like adventure tourism, religious tourism, and sir, agro-based tourism, and sir, snow-based tourism, and lake tourism, river tourism. मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म। अच्छा, एक बात आजकल ये चल रही है कि जैसे बहुत सारे लोकल लोग बोल रहे हैं इस बारे में कि खासकर डिजास्टर के बाद कि जो स्पिरिचुअल जो रिलीजियस प्लेसेस है और रिलीजियस प्लेसेस और जो पिकनिक टूरिज्म है, दैट कांट गो हैंड इन हैंड, वो साथ साथ नहीं जा सकता। तो ऐसे इस तरह की बहुत सारी बातें आती, तो और खासकर तब से जब से जो बिजली महादेव रोप वाला जो कंट्रोवर्सी है, तो आपका क्या टेक है इस पे कि क्या ऐसा हो रहा है हिमाचल में? यस सर, ऐसा हो रहा है क्योंकि जो रिलीजियस प्लेसेस है वहाँ पे ये कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि उनको पिकनिक प्लेसेस नहीं बनाना चाहिए। जैसे सर आपने कहा बिजली महादेव का एग्जांपल है, तो सर रिलीजियस टूरिज्म बेसिकली वहाँ लेवल तक होना चाहिए कि वो टेम्पल में आ रहे हैं, देवता के दर्शन कर रहे हैं और एक अपना एक डेकोरम बना के मेंटेन कर रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग। पर सर अगर वो पिकनिक प्लेस बन जाएगा तो फिर उसकी जो रिलीजियस सिग्निफिकेंस है वो डिटीरियोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें फिर? सर फर्स्ट तो हम यही कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इस प्लेस पे ये रूल्स हैं, ये नॉर्म्स हैं और ये फॉलो करने चाहिए। ये एक पिकनिक स्पॉट नहीं है, एक रिलीजियस प्लेस है। और जो सबसे पहले तो यही हो सकता है सर। और जो टेम्पल मैनेजमेंट कमिटीज़ होती है, वो ये प्रॉपर एनफोर्स करवा सकती है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज़ नॉर्म्स। ठीक है। अच्छा, आप राजगढ़ एरिया से हो, ठीक है, तो आपके वहाँ एप्पल भी होता है, तो एप्पल की कोई 2-3 वैरायटी के नाम बता सकते हो? अर्ली जो न्यू वैरायटीज है। अर्ली वैराइटीज़ सर गाला, और स्पर वैराइटीज़ है सर, और श्रीको गाला है और ज़ीरो माइन। अच्छा, क्या फ़र्क होता है इनमें और जो ट्रेडिशनल वैरायटीज है? सर जो एक तो ये रूट स्टॉक का फ़र्क है, जो रूट स्टॉक क्या है चीज़ है? सर रूट स्टॉक है कि पहले जैसे सर सीडलिंग क्रॉप्स होती थी, तो सीडलिंग पे हम वी ग्रो अ सीडलिंग फ्रॉम अ सीड एंड देन प्लांट देम इन द ऑर्चर्ड। पर सर रूट स्टॉक में हम क्या कर रहे हैं कि सर हम इसमें एक सायन और स्पर लेते हैं सर, जो रूट स्टॉक होगा उसको हम क्लोनली प्रोपेगेट करते हैं लार्ज स्केल पे। फिर सर जो हम पर्टिकुलर वैरायटी उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो फिर हम उसमें ग्राफ्टिंग टेक्निक यूज़ करते हैं और फिर उसके अर्ली प्रोडक्शन। सर अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें सीडलिंग और अर्ली वैरायटीज़ में, एक तो सर यही है कि जो इनकी रिक्वायरमेंट है, जैसे सर रेड डिलीशियस सीडलिंग वैरायटी है, तो उसको लॉन्ग चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं। पर जो सर ये अर्ली वैराइटीज़ है, इनको कम चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं और ये अर्ली टाइम में फ्रूट प्रोड्यूस कर देती है।